So US-China led world order has collapsed, causing a leadership vacuum. So India is ready to lead. एक तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं China+1 strategy की, being an integral part of the global supply chain. And जब इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी की हम यहाँ बात कर सकते हैं अबाउट द रेजिलियंस, ईज ऑफ गवर्नेंस हम प्रमोट कर रहे हैं. वी आर गोइंग अहेड विद अ लॉट ऑफ इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, जिसमें वी हैव ऑल्सो सीन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो स्टार्टेड टू रिड्यूस. प्लस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हमने अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करी थी. एंड वी आर अगेन गिफ्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं. So these are some areas, and जो हमारा growth momentum है that also remains strong. Plus हमारी domestic market का जो size भी है that is also very, we can say, large and competitive compared to other countries. So given that this opportunity, India can definitely lead. And we're talking about green energy transition. So there is a lot of scope of FDI in India. So conflicts are happening in India के ऊपर इतना कोई major volatile impact नहीं हुआ है except for the crude oil prices. And China may, given we are seeing economic slowdown, so even countries and different companies, they are looking for alternative locations. So the age-old normal of the conflict becomes the new normal, and India has shown that a nation with limited capabilities can outline concerns of like-minded countries, global south की बात कर रहे हैं, and work to build the capacities in the smaller states. So even tourism, maybe we are now promoting village tourism, and for the products we are like जो phrase use करते हैं कि being vocal for local or one district one product. So there are multiple areas where we are working and seeing changes. So numerology की बात करें तो we have a data here, 16% expected compound annual growth rate हो सकता है for the hospitality industry in India. So size of the global hospitality industry 2022 में it was $4,107 billion. And 2028 तक it would be almost, we can say it would be clearly more than the double the size. Changing rules of luxury. Self-enhancement is quietly surpassing the flaunt value. So we can say कि जो पहले हम consumerism और materialism की बात करते थे, या we just used to be concerned about कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, others are having this thing. But अब focus, instead of this fault value, we are seeing a shift towards self-enhancement. So comparison hunting the Indian customers, they are driving the agenda of luxury thought leaders. So only Indian customers are having such a big impact. So historically, जो luxury brands, they have played the denial game. So pricing on request, मतलब अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी विजिट करोगे, कुछ ऐसी साइट्स आज भी हैं कि दे आर नॉट डायरेक्टली वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स का प्राइसेस मेंशन नहीं है, तो ऑन रिक्वेस्ट ही आपको प्राइसेस शेयर किए जाएंगे. एंट्री बाय इनविटेशन आपको मिलती थी उनकी साइट्स पे, इवन इन स्टोर्स ऑल्सो फिल्टरिंग ऑफ प्रोफाइल्स किया जाता था, तो बहुत ही ज़्यादा नैरो कास्टेड कम्युनिकेशन होती थी. सो ग्रेट स्ट्रैटेजी व्हेन मार्केट्स वर स्मॉल, और जब इंफॉर्मेशन रेगुलेटेड थी तो उस टाइम पे दिस स्ट्रैटेजी वर्कड. And everything then changed as the millennium turned. So educated professionals, they acquired substantial legit cash. तो VC की जो middle income class था उनका size increase होने लगे, they started to grow. तो with a native cariness, and they started to evaluate luxury on their own terms. So upfront comparison charts, EMI offers आ गए, cashbacks आ गए, pure opinions आ गया, वो ज़्यादा prevalent हो गया. सो कंज्यूमर्स का हम बोल सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग पार्ट थी इन फैक्टर्स से और इन्फ्लुएंस होने लग गई. इवन दिस इज ट्रू इन केस ऑफ द लग्जरी कार्स ऑल्सो. होटल्स की बात कर सकते हो, एंड ज्वेलरी की आप बात कर सकते हैं. सो इवन जो सुपर लग्जरी ब्रांड्स हैं, जो जियो का वर्ल्ड प्लाजा है मुंबई में, इट हैज इंसिस्टेड दैट एटलीस्ट 4 कॉम्पिटिटिव पेयर्स दे मस्ट बी प्रेजेंट टू अट्रैक्ट अ वैरायटी ऑफ सीकर्स.
final frontier of inclusion was e-commerce. So mostly जो India websites, Indian brands हैं, they are also hosting these luxury products of other brands. And then again UPI और digital inclusion की वजह से भी we are seeing major change and impact. एंड तो जैसे मैं ऊपर बात है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वर्नाक्युलर एंड इंटरनेशनल, तो इसमें जैसे हम चाय को एक एग्जांपल मान सकते हैं, तो और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? इसमें हम योगा की बात कर सकते हैं, और इसमें ठीक है इंडियन टी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लैंग्वेज के बारे में बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटेड द एड वर्ल्ड। और इवन मूवीज की भी हम सिंपली बात कर सकते हैं, जो इंडियन बॉलीवुड को जो बाहर रिकग्निशन अब मिली है। तो पहले ये हमारी मेंटालिटी या होता था, जो सिंपली अगर माइंड में अगर हम ठंडा बोलते थे, ठंडा वर्ड यूज करते थे, तो हम हमेशा हमारे मुंह से ही निकलता है कोका कोला वर्ड। So it continues to stand out as a beacon of authenticity. So now more than ever, as ideas they become prone to imitation, this campaign serves as a case study of a creative, insightful, and genuine marketing strategy. So making penalty for the competition law violations truly deterrent. So Competition Commission of India, एक important body, is recently published draft regulations proposing कि how the turnover या income it could be determined for deciding the size of penalty on an erring entity. मतलब if you're violating the law, if you're violating the competition, the rules in the market, तो आपकी जो पेनल्टी है वो अभी हम फिक्स्ड अमाउंट लेके नहीं चल रहे, पेनल्टी वो डिपेंड अपॉन किसी कंपनी का टर्नओवर या इनकम या प्रॉफिट्स कितना है। सो इसका ज्यादा डेटरेंट इम्पैक्ट हो सकता है। सीसीआई के आप कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हाईलाइट कर सकते हो इन शॉर्ट में? इम्पोर्टेंट फंक्शंस यही होते हैं कि मार्केट रेगुलेटर है, इट लुक्स फॉर कि मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है या जो कंपटीशन हो रहा है एक्चुअली दैट इज मेयरली इन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और वहाँ पे कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो गूगल का केस हो गया कि एंटी ट्रस्ट केस जो चल रहा है अगेंस्ट गूगल, की गूगल एंड्रॉइड फोन्स में अपने एप्स को प्री इंस्टॉल कर देता है एंड देन इट सेल्स। सो दिस इज नॉट फेल्ट कि एक कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, बाकी एप्स को वो एक हम बोल सकते हैं कि फेयर स्पेस नहीं मिल रही है। देन इसके अलावा देयर वाज वन मोर केस जो जीएसटी एंटी प्रॉफिटिंग का केस था। उसमें ये था कि अगर जीएसटी टैक्स रेट रिड्यूस हो रहा है बट सेलर्स उस जीएसटी टैक्स रेट को कम करके नहीं बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर को अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हुआ ऑफ रिडक्शन द जीएसटी टैक्स कट। तो दो एग्जाम्पल्स की हम बात कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन यही है, जैसे टर्म में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लाइक डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जैसे। मानसी एक और है इसमें कि हम्म। अमेजन जैसे फॉर एग्जांपल अपना प्रोडक्ट शुरू में बेचता है ई कॉमर्स में, तो उस पर भी हुआ था ये हाँ, चीज। एक वो एस्पेक्ट भी, हाँ ई कॉमर्स पॉलिसी का भी है कि जैसे अमेजोन अगर बेच रहा है तो उस पर भी हमने लिमिट लगा दी कि कोई एक सेलर जो है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो बस अपने 20% ऑफ द प्रोडक्ट ही सेल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सेल किए जा सकते। और इसमें फिर डिस्काउंट्स के ऊपर भी एक इशू था, इतने हैवी 70% 80% डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। ये हिंदी इन न्यूज़पेपर हाँ, देखते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं कर देती हूँ मैं, कोई नहीं अब। ठीक। बोलो। ओके दिव्या। यस मानसी।
जो हमला हुआ था कि एमवी केम प्लूटो और एमवी साई बाबा से रिगार्डिंग उसको लेकर है कि जो हिंद महासागर में मित्र देश है उनके साथ मिलकर इन सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। कि दिल्ली में जो इजराइल का दूतावास है वहां पर विस्फोट हुआ जिसमें कोई घायल नहीं हुआ, पर इसके उन्होंने तुलना करी है 2021 में भी इस तरह का एक विस्फोट हुआ था। और यहाँ पर एक पत्र मिला है जिसमें अभी कनेक्टिविटी देखी जा रही है और सर्च जारी है कि किस तरह से या क्या रीजन थी इसके होने की। हम्म, ये हमने बात कर ली है INS इम्फाल के बारे में। स्टेल्थ फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर है, सॉरी। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए 80 लाख की दवाइयों को ले जाते हुए। तो इनके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, या फिर जैसे उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई कागजात नहीं थे बिना इतनी मेडिसिन को ले जाने के, या फिर किस तरह से क्या होता है, कस्टम विभाग को सौंप दिए गए। हम्म, हाँ मतलब मेन प्रोविजंस और तो यही है कि यहाँ पे ये कस्टम्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ चेकिंग। और विटामिन ए को लेकर ये अभियान चलाया गया है कि विटामिन ए जो है पूरे साल में 2 बार इससे रिगार्डिंग जो दवाई है वो पिलाई जाएगी, जैसे पोलियो की दी जाती है। और इसमें ये कहा गया है जैसे विटामिन ए आइज के लिए भी होता है, जो आंखों से संबंधित रोग होते हैं उनसे बचेंगे, डायरिया, इन सारी बीमारियों से जो उनकी इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। और इसके अलावा 9 महीने में पहली खुराक दी जाएगी। मीजल्स रुबेला की जो पहला टीका है वो 9 महीने के बच्चे को ही लगाया जाता है, तो उस टाइम पे ही दिया जाएगा ये 5 साल तक के बच्चों के लिए। इसको इन शॉर्ट में कवर करना, ज्यादा डिटेल में नहीं। यूएन की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाया कि किस तरह से वो 1945 में बनी थी, ताकि और कोई जो विश्व युद्ध ना हो या फिर किसी भी तरह की अशांति ना फैले। लेकिन तब से अब तक कंटिन्यूअसली देखा गया है कि वो किसी भी जो भी विवाद हुए हैं उनको रोकने में नहीं हुई है। जैसे कि इसके बनने के 10 साल बाद ही अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ था, वो भी कंटिन्यूअसली चला था। उसके बाद 1980 में हमने सेम चीज इराक और ईरान के बीच में देखी थी। उसके बाद हमने 1994 में अफ्रीका में रवांडा बहुजन समुदाय हुती और तूती लोगों के बीच में जो जनसंहार हुआ था उसमें रवांडा देखा। जेनोसाइड। हाँ, 1995 भी देखने के लिए मिला था। आगे अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो रशिया और यूक्रेन में देख रहे हैं, और हमास और इसराइल में देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली इस तरह की चीजें होती रही हैं, लेकिन वो उसको रोकने के लिए रोक नहीं पाए। तो उसका क्या वो सही तरह से अपने काम कर रहा है, फिर जिस चीज के लिए वो बनाया गया था वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 2321 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें अलग अलग देश डोनेट करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 24 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं भारत ने, जो टोटल बजट का 1% है, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा बजट है, 193 देश है, लेकिन उसके बाद भी जो जिस काम के लिए वो बना है वो नहीं कर पा रहा था। उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसके होने का फायदा क्या है। तो इससे क्या करना और चाहिए दिव्या? उसके लिए जो भी उनके जो रणनीति है उसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे यूएन में 5 मेंबर परमानेंट है, रशिया, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस। तो उनके अंदर और कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जा सकता है। फिर उनकी जो वीटो की पावर है उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर थोड़ा जो पूरी तरह से वो काफी बार होता है, देखने के लिए मिलता है कि अगर कुछ देश किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरे उस पर वीटो की पावर लाकर उसको रोक देता है। तो वहां कंट्रोल किया जा सकता है उनकी हम्म, जो उन चीजों के ऊपर किया जा सकता है। उसके अलावा देखने के लिए मिलता है कि वेस्ट और ईस्ट को लेकर उसमें हमेशा टकराव रहता है, तो उस चीज को किस तरह से सुलझाया जाए वहां देखा जा सकता है। यूएन में सबसे ज्यादा जो बजट है वो यूएस का होता है, तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है, उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो थोड़ा न्यूट्रल या तटस्थ नजरिया लाया जा सकता है। और दूसरा कि यूएन के पास अपना डेडिकेटेड फोर्स नहीं है, तो उसके हिसाब से भी काम किया है ताकि यूएस की पीस कीपिंग फोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेटरेंट क्रिएट करे। ये सब हमने ठीक। कल्प मेधम महान महान सौंदर्य। सौंदर्य, अत्यधिक ताकत, बहुत धन का
वास्तव में कुछ खास उपयोग नहीं है, एक सच्चा हृदय सबसे ऊपर है। सही बात है, बोला देव। रतन टाटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर वो इतनी सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं उस चीज को, जो उनकी इनकम है वो सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं 60% के अप्रोक्स। तो इसमें बोल सकते जो हैं सबसे ज्यादा, क्यों क्यों, ये क्यों जस्टिफाई करना है ना यहाँ पर, एग्जाम्पल तो बोल हाँ सकते जस्टिफाई कैसे। मैं इसमें रखूंगा, फिर मानसी तुम बोलना इसमें इसमें। हाँ ठीक है। कि पहली बात है, सौंदर्य, ताकत और धन है वो एक्सटीरियर है, एक तरह से देखा जाए तो। आपके पास जो फिजिकल एस्पेक्ट है उस पर आपको कंट्रोल करने का मौका मिलता है, आप ले सकते हो। लेकिन अंदर का जो खुशी है वो तभी आ सकता है जब सेल्फलेस काम करते हो, जब आप सोचते हो, जब आप मतलब आप कनेक्ट हो जाते हो हायर सेल्फ से, स्पिरिचुअलिटी में चलते हो, भगवान को याद करते हो, तो सच्चा हृदय सबसे ऊपर है। और ऑनेस्टी से काम करते हो, तभी का सबका भला होता है, खुद का भी, परिवार का भी, और आसपास में जो लोग होते हैं उनका भी। आई थिंक ऐसे इसको कर सकते हैं, हाँ बोलो। जी। हाँ, वो हाँ ये कि मतलब धन भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर वो हाँ। लिमिट खत्म हो जाती है, फिर आपको नहीं समझ में आता कि उसका करना क्या है। तो वो ये कि अगर सच्चा हृदय सबसे ऊपर है अल्टीमेटली, तो वो खुशी वाला एस्पेक्ट ये है कि अगर इतना ज्यादा पैसा आने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप अंदर से खुश हो। तो वो हम्म। दोनों चीजें इतनी लिंक्ड नहीं है, स्टार्टिंग में लग सकता है बट अगेन वो ठीक है, चीज उस चीज आपके हाँ हृदय को कुछ और डिसाइड नहीं बोलने करूँ करती। ना, प्रेरणा। जैसे सच्चे हृदय का आप कोई एग्जांपल दे सकते हो इंडियन सोसाइटी के अंदर, जो हम डे टू डे सच्चे तो बेसिस। हृदय। फिलैंथ्रोपी हो गया, हम्म, उसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। सच्चे हृदय का यही है कि हाँ मतलब आप खुद उसको वॉलंटैरली करना चाह रहे हो उस एक्ट को, जैसे हाँ बोधिसत्व का दिव्या। एग्जाम्पल दे सकते हैं, बोधिसत्व। आप महात्मा हाँ हाँ गांधी का एग्जाम्पल भी बोधिसत्व दे हो सकते सकता हो। है। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उनके पास पावर सच्चे भी थी, हृदय का सोच उसमें हो भी जाता है। थे, लेकिन फिर भी वो उसे नियंत्रित रखते थे किस तरह से लोगों की भलाई में यूज किया जाए। तो उस वे में ठीक है, इसे ले लेते हैं फिर। बाघों की बात की गई है कि अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो 12 बाघ अभयारण्य है भारत में, और विश्व की 80% बाघों की जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन उसके बाद भी जिसमें से 5 ऐसी जगह हैं जहां से बिल्कुल ही बाघ खत्म हो चुके हैं, जिसकी कारण 3 है कि एक है कि बाघ की तस्करी के कारण, स्मगलिंग जो होती है उसकी वजह से मरते हैं, दूसरा अप्राकृतिक जो अननेचुरल डेथ होती है, तीसरा है नेचुरल डेथ। तो इनकी वजह से देखने के लिए मिला है जो महाराष्ट्र में सह्याद्री बाघ अभयारण्य है, उड़ीसा में सतकोसिया, मिजोरम में डंपा, और तेलंगाना तेलंगाना में कवल, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग। इनमें से पूरी तरह से बाघ खत्म हो चुके हैं, एक भी बाघ नहीं है इनमें। तो उस उनके ऊपर काम किया जा सकता है कि किस तरह से 1973 में बाघ अभयारण्य जो चलाया गया था कि बाघों को सेफ्टी के लिए, उनकी रक्षा के लिए, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए कि उनकी संख्या घटे ना, उनकी बढ़े। और एक एक ही बाघ बचे हैं जिनमें वो ज्यादा बाघ ही नहीं है, उन चीजों को किस तरह से बचाया जाए। मेरे को ये पूछना था, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है कि सबरीमाला राजस्व संग्रह 200 करोड़ के पार, तो जो शॉप होती है आसपास मिठाई की या फूल की, वो सब भी मंदिर ट्रस्ट के अंदर ही आती है। 96 करोड़ रुपए मिठाई प्रसाद की बिक्री से प्राप्त हुई। नहीं, मेरे को श्योरिटी नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी ट्रस्ट चाहिए। के अंदर आते हुए उसी को रेगुलेट करते हैं इसको, पैसा उनका नहीं होता लेकिन रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन में तो रोल हो सकता है। ब्लैक फंगस से रिगार्डिंग है कि आईआईटी मद्रास की शोध है, उन्होंने 3D प्रिंटिंग तकनीक तैयार की है। ब्लैक फंगस से जो मरीज होते हैं उनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है, या फिर जो उनके चेहरे पर जैसे आंख नाक मुंह ये इतनी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं कि वो जो काम करने लायक नहीं रहते, तो उनको किस तरह से सही किया जाए। तो इम्प्लांट विकसित किया गया है जिसके थ्रू उनको मेंटल 3D प्रिंटिंग के माध्यम से फिर से उनके चेहरे को क्रिएट किया जाएगा ताकि वो नॉर्मली रह सके। और किस तरह से जो जब हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं तो जो ये टिश्यू होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं पूरी तरह से, जिसकी वजह से चेहरे पर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी सर्जरी के लिए बनाया गया है।
हम्म ये कर लिया हमने कवर, ये तो। कहते हैं हिजबुल्ला के बारे में बता दीजिए आप, जैसे यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट में ऊपर। हिजबुल्लाह इजराइल। हमास, सॉरी, लेबनान में बेस्ड है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। हिजबुल्ला, हमास हो गया इसराइल, और हूती हो गया यमन। ये टेकन नोट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जैसे बोलते हैं इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, तो संघवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसके ऊपर पिटिशन लगी थी कि जहां पर केंद्र सरकार या फिर इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है, ये नहीं किया जाना चाहिए। इसकी जगह संघ सरकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार शब्द जब प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है कि जो राज्य सरकार है वो उसके अधीन है। तो जो न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने बोला है कि इस तरह से हम उनके प्रवेश क्षेत्र में नहीं जा सकते। और दूसरा कि संघीय ढांचा का बुनियादी ढांचे के अंदर जरूर आता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि शब्द का प्रयोग करने से राज्य उसके अंदर आ गया, वो सही है। उस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग एक्ट में अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार या फिर का प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द को गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, अब टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं। सो टूरिज्म की जब बात करते हैं, द पॉलिसीज या जो स्ट्रक्चरल चेंज रिक्वायर्ड है, ये तो है नहीं कि हम बैन कर सकते हैं टूरिस्ट को या टूरिज्म एक्टिविटी के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट हो हमारे कोई पॉलिसी मेजर का, क्योंकि वो भी हिली स्टेट जो है, जैसे उत्तराखंड और सिक्किम है, वहाँ पे मेजर इनकम जो लोगों की है वो टूरिज्म के थ्रू आती है। तो जो अप्रोच है टू द टूरिज्म, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। अगर हम हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो इंडिया में दे कंप्राइज ऑफ वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है। तो एक हिमालयन रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, और व्हाट वुड बी द फोर्थ रीजन, औशिक? 4 सुंडरलैंड, बायोडाइवर्सिटी, जो सुंडरलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार। ठीक है, ओके। ये दो एरियाज ही, 15 नेशनल पार्क्स और 59 सैंक्चुरीज हिमालयन रीजन में जो खाली यहाँ बात हो रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोकेशन है, मतलब ये इसको ही सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। तो वी आर सीइंग द नंबर ऑफ टूरिस्ट इनफ्लक्स है ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट बर्डन है, वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी। सो इफ वी गो बाय द नंबर्स, मतलब जो स्टेट की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा नंबर में वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इट शोज कि टूरिस्ट नंबर्स को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक गेन्स डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है। तो इको टूरिज्म हमें एज एन ऑल्टरनेटिव प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है। इको टूरिज्म मीन्स इकोलॉजी प्लस टूरिज्म। सो टू बी मोर सेंसिटिव टू द नेचर, सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एंड माउंटेन रेंज में बायोडाइवर्सिटी एरियाज में जो आइडल स्पॉट्स हैं वहाँ पे ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो भी कंटेम्प्रेरी हमारी मास मार्केट अप्रोच है, दैट नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म टू द इको टूरिज्म। एंड उसके थ्रू जो नेचर ऑफ इवन इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम बात करते हैं इवन अर्बनाइजेशन इन द हिली स्टेट्स। So it needs to be planned and scientific and according to the demand and according to the ecological environment of a particular region. So Nazafgarh में we are coming up with the second bamboo garden. So specifically यहाँ पे we'll be seeing plantation of we'll see around 8,000 bamboos of 101 species would be planted, 82 bamboos each of one species in the village area. So it will help in conserving good quality of the bamboo species, will also aid in conservation of the gene pool. तो ये important है. And plantation of the bamboo species on the Yamuna floodplains would also be conducted. So this has already shown good results. तो इसको और थोड़ा different locations पे we are coming up. So this can be taken up जब हम बात करते हैं even conservation of environment की, the bamboo gardens. इस एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशन की हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स।
So here we are having Dr. B.R. Ambedkar Schools of Specialized Excellence. Specialized Excellence मतलब हम Institutions of Excellence की बात करते हो यहाँ पे, और मतलब स्पेसिफिक टर्म यूज किया गया। तो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, औशिक अब क्या यहाँ पे इंक्लूड करोगे? हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में प्रिसीजन वे में रहेगा, फिर सर्विस सेक्टर के हिसाब से रहेगा हाई एंड हाँ, फोर्थ स्किल्स के जनरेशन। नहीं। 21st सेंचुरी EQ का स्किल्स बात कर कौन रहे सी है? हैं। ह्यूमैनिटीज हो जाएगा, ह्यूमैनिटीज स्टेम हो गया, सब में मिक्स हाँ, मतलब ब्रिजिंग आर्टिफिशियल स्किल। इंटेलिजेंस हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी हो इंटेलिजेंस। गया, हाँ, ये सब। जीन एडिटिंग, ये सब हो जाएगा। और स्टेम सेक्टर वुड बी प्रमोटेड, देन परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, और इसके बाकी कॉम्पिटेंस है। आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल की तरह भी एक्ट करेंगे। तो पिक्चर में भी वी कैन से कि इसके थ्रू लाइक साइंस मॉडल यूनाइटेड नेशंस कंडक्ट किया जाता है ऑन दैट अप्रोच। सो ये अगेन टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा, ट्रांसफॉर्मिंग टूरिज्म। तो रिवैम्पिंग हरियाणा's tourism landscape, hot air balloon rides would be there. Then कुरुक्षेत्र का जो एक रिच हेरिटेज है उसको कंजर्व करने की बात हो रही है। रूरल टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। इसके साथ जैसे कि अरावली सफारी पार्क वुड आल्सो बी सेटअप। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं। एंड इंटरनेशनल गीता महोत्सव, दिस वी नो, कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आर्ट एंड कल्चर। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन कुरुक्षेत्र district. Then revitalization of the spiritual and adventure attractions also in the Panchkula district. So different districts में we are having again एक तरीके से specialized activities promote की जा रही है। And homestays again, यहाँ पे भी ये keyword हो गया, homestays elevate the Haryana's charm. So the homestay scheme serves as a beacon of sustainable tourism, forging a stronger connection between visitors and the authentic cultural tapestry of Haryana. You can see the Chief Minister of Haryana is taking on a bike ride, the water bike जो है। कि लाइन ऑफ नो कंट्रोल, तो एक कार्टून बोल रहा है, सो देयर इज दिस फीमेल, आई लॉस्ट माय जॉब टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो द अदर पर्सन इज सेइंग एनरोल इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मतलब वो बोल रहा है, एक तो इसका हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मतलब जो मेरी जॉब है वो तुम ले लो, जो तुम्हारी है वो मेरे को दे दो। सो यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन की भी अगर बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी जॉब रिप्लेस कर ली। शी इज सेइंग कि आई वाज अ रिसेप्शनिस्ट देयर। सो इसके अलावा एक और लाइक गवर्नमेंट भी रन करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो, और जो फिर प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं उनको डेटा शेयर किया जाता है एंड यू कैन गेट अ जॉब। सो एक ये तरीका भी होता है। सो ये दिस इज द बैकड्रॉप कि पेटीएम लेज ऑफ 1000 पीपल ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जॉब लॉस हो रहा है, बट अगेन हमने बात करी है कि जो हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा ओपन अप हो जाएगी। तो इनके लिए जो लो स्किल्ड एम्प्लॉयज जिनकी जॉब्स रिप्लेस हो रही है उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि शी वाज अ रिसेप्शनिस्ट। तो अगेन अब शी नीड्स टू गो फॉर अपग्रेडिंग हर स्किल्स या अपस्किलिंग की जो हम बात करते हैं। औशिक, आप इस पे कुछ बोलोगे? नो मानसी, मतलब ले लिया आपने पूरा। ठीक है। ये अभी वही आर्टिकल जो अभी हमें हिंदी न्यूज़पेपर में हाँ, कवर किया, उसमें कॉलिंग यूनियन गवर्नमेंट अ सेंट्रल गवर्नमेंट इट वोंट डाइल्यूट फेडरलिज्म। तो ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही है कि अगर आप यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इट वुड बी यू नो ऐसा इंडिकेट नहीं होगा कि फेडरलिज्म के काउंटर हम बात कर रहे हैं। तो सिंस फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इट कैन नॉट be said to be diluted or violated in any manner by the use of this expression of central government. सो बेसिक फीचर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है हमारे गवर्नेंस सिस्टम का एंड द कंट्रीज विच इज रूटेड इन आवर कंट्री। सो दैट्स ऑल। थिंक यू कैन स्टार्ट विद द समराइजेशन। दिव्या। पॉलिटी में हमने डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस स्कीम्स क्लेम करते हैं जो फार्मर्स, उनको किस तरह से ट्रांसपेरेंस हो, वो बेनिफिट पहुंचा सके फार्मर को, टाइम के साथ जो सेटलमेंट है वो विद इन टाइम हो। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जब हम 2024 के व्यू की बोलते हैं कि इंडिया को किस तरह से देखना चाहिए, तो इंटरनेशनल लेवल पर बात की थी कि साइनो इंडिया रिलेशनशिप, एंटी चाइना अलायंस के बारे में, रशिया चाइना टाइज जो इंक्रीज हो रहे हैं उनको लेकर इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी क्या होगी। और जब हम
इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या क्या इश्यूज चल रहे थे, तो कास्ट सर्वे के रिगार्डिंग, हेट स्पीच से रिलेटेड, और जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको लेकर, और डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल और डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग। ठीक, करो ना। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हमने सबसे पहले तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक की बात की। देन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है, 35 नेशंस का कोलैबोरेशन है, उसके बारे में बात की। देन स्टेट स्पेसिफिक हम बात करें तो उत्तराखंड के बारे में हमने बात की, हिमालयन मोनल जो कि उसका स्टेट बर्ड है। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स है उधर, सबसे बड़ा डैम जो है वो तेहरी डैम है, भागीरथी रिवर के ऊपर है, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमें जिम कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क जो वहाँ पे लोकेटेड है, जिम कॉर्बेट से कोसी और रामगंगा रिवर फ्लो करती है, और राजाजी नेशनल पार्क जो उसके पास में ही है, उससे गंगा और एक और रिवर है वो फ्लो करती है। उसके बाद हमने वेलनेस सर्किट की बात की, जहाँ पे हमने अरोमा थेरेपी की बात की। उसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड पोलर रिसर्च है, एंड हिमद्री जो है वो 2008 में स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हमने बात की, दैट इज। इसके अलावा हमने कोल गैसिफिकेशन की बात की, जिसमें कि जो कोल है उसको हम हीट अप करते हैं, उसके बाद जो उसमें हम ऑक्सीजन या फिर स्टीम ऐड करते हैं, बट वो उसका टेम्परेचर इतना नहीं जाता है जितना उसमें हम उसको बर्न कर दें। बट उसके बाद जो कोल है वो बर्न होने की जगह गैसेस में ट्रांसफॉर्म होता है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन, इससे सिन गैस जो होती है वो फॉर्म होती है। दैट इज ऑल फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। Okay. Adding to that, important keywords we discussed in the defense: INS Mormugao, Visakhapatnam class, Delhi class, Kolkata class, और destroyer, stealth destroyer, Mozambique डॉकयार्ड लिमिटेड। ये गवर्नमेंट बॉडी है, स्टेक होल्डिंग अराउंड अप्रोक्सीमेटली 84% है। NPCL का बात की विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन इंडिया। उसके बाद रिगार्डिंग टू द ओमन, FTA साइन हो रहा है, सीपा साइन हो रहा है इंडिया के साथ। फिर इंक्लूजन ऑफ स्वीडन इन नाटो, नाटो के बारे में बात किए। देन रशिया, चाइना, ईरान नेक्सस का बात किए, चाइना का जो प्रॉब्लम्स है विद रिस्पेक्ट टू लोकल नेबरहुड। उसके बाद फिर इन जनरल उसका जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम किया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का, उसके बाद किए। फिर इंडिया एज अ बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट, कि वो सस्टेनेबल है नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा किए। मानसी, यू कैन एंड और कंक्लूड एंड एंड। Okay, so thank you so much for joining us on Answer Carry, and you can subscribe to our channel for such regular and detailed videos. मानसी, मैंने बोला था।